ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि is it too late? Yes. तो हाँ, दुख तो होता है कि सिर्फ 5 साल पहले it was a fraction of the price. लेते तो अच्छा होता। But हम 5 साल बाद यही चीज़ सोचेंगे. What I would say to listeners is not to give in to headlines and hype. Buy gold slowly and gradually. Prices देखें जैसे कि अब थोड़ा सा कम हुआ था तो maybe it was a good time to buy क्योंकि दोबारा से धीरे धीरे अब दोबारा फिर जा रहा है। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ? उसमें एक रिफाइनिंग फ़ी लगता है जो जूलर चार्ज करता है। उसके अलावा जूलर का टाइम लगता है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसका लेबर है, उसका एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन आई थिंक जो डिस्कनेक्ट है वो ये है कि अब लाइफस्टाइल्स भी बदल गए हैं और जो टेस्ट है वो भी बदल गया है। कुछ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीदें, like gold bangles and gold bars, strictly for investment, और कुछ pieces for everyday pleasure and joy. ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ ਗੋਲਡ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। 130 times increase, इतना increase गोल्ड में भी नहीं आया है। लेकिन एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, 1979 में सिल्वर $6 an ounce था, फिर एक साल में वो $50 an ounce पे पहुँच गया था, 2 साल बाद फिर $6 पे आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ $7,000 ਆਊਂਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ $150 ਪਰ ਆਊਂਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ 24 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ $197 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $197 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $214 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1,40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,43,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 22 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਕੈਰਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ $1,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $8,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦਾ $, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੋਲਡ ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਗਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੈਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ
ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਦ ਡਾਇਮੰਡ ਲੇਡੀ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਓਨਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਊਲਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਦੀ, ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਔਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੀਤਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਤਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you so much for having me once again. It's truly an honor to be here. मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ बातें कर कर। बिल्कुल, मुझे भी, सेम हियर। शीतल, आज हम जो बात शुरू करेंगे वो ये है, अगर मैं एक बिग क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, डायमंड से ही शुरू करते हैं, गोल्ड पे फिर आएंगे। डायमंड क्या 2026 में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या कई लोग सोचते हैं कि नहीं डायमंड से ज़्यादा गोल्ड लेना चाहिए? आपका क्या टेक रहेगा इस बात पे कि डायमंड क्या एक गुड इन्वेस्टमेंट है 2026 की अगर बात करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत चेंजेस आए हैं डायमंड की इंडस्ट्री में। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन बहुत करेक्टली, केयरफुली, समझदारी से इसको ख़रीदना पड़ता है, क्वालिटी देखकर, सर्टिफिकेशन देखकर। पर चेंजेस ज़रूर आई हैं और इसका कारण टू फोल्ड है। सबसे पहले तो लैब ग्रोन डायमंड्स ने डायमंड इंडस्ट्री को टोटली डिसरप्ट कर दिया है। नंबर 2 है कि जो साइकोलॉजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, पर्टिकुलरली जेन ज़ीज़ में, वो बहुत बड़ा चेंज लाई है। तो हम 10-15 साल पहले जाते हैं जबकि एक जो डायमंड का परचेस था वो इमोशनल होता था, और दूसरी बात थी उसको एक लॉन्ग टर्म लेगेसी परचेस माना जाता था। हम खरीदते थे एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज में, और उसको हम रखते थे कि हम उसको लॉन्ग टर्म मतलब जेनरेशनल वेल्थ रखें और वी कैन पास इट डाउन टू फ्यूचर जनरेशंस। वो सोच थी। अगर हम जेन ज़ीज़ को देखते हैं तो वो लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदने में बहुत खुश हैं बिकॉज इट्स लो कॉस्ट, इट्स लो कमिटमेंट, इट्स कन्वीनियंट। और जो वो $20,000 नेचुरल डायमंड में खर्चेंगे, 2-3 हज़ार में लैब ग्रोन आ जाता है, और बैलेंस में दे कैन बाय ए ट्रिप, वेकेशन, वो अपने लाइफस्टाइल पे खर्च सकते हैं, वो एक्सपीरियंस पे खर्च सकते हैं। आजकल की जेन ज़ी इतनी लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, वो सोचती है कि डज दिस फुलफिल माई नीड टुडे, राइट? दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये चेंज सिर्फ डायमंड इंडस्ट्री में नहीं आया है। अगर हम हाउसिंग में देखें तो जेन ज़ी इज़ रेंटिंग वर्सेस बाइंग। अगर हम कपड़ों में देखें, जेन ज़ी इज़ बाइंग मोर यूज्ड क्लोथिंग वर्सेस ब्रांड न्यू। अगर हम कार्स में देखें, दे आर ऑप्टिंग फॉर ईवो सर्विसेज और ट्रांजिट वर्सेस बाइंग ब्रांड न्यू कार्स। तो दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल चेंज। बट अगर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, अगर हम नेचुरल डायमंड को बहुत ही केयरफुली एजुकेटेड वे से बाय करें एक प्रोफेशनल के साथ, तो अगर हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म 10 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट मान के चलें, तो नेचुरल डायमंड भी अभी इस तारीख में अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यस, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल 2 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदते हैं, जो कि हो सकता है 1000 से 1500 के बीच आ जाए, जबकि नेचुरल डायमंड जो हैं वो बहुत महंगे होंगे, और अगर जो जेनजी है आज अपनी उसके लिए शादी के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए वो खरीद लेता है लैब ग्रोन डायमंड फॉर एग्जांपल फॉर एंगेजमेंट रिंग, तो उसका 5-10 ईयर्स फ्यूचर क्या होगा फिर? देखिए, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अक्सर लोग लैब ग्रोन डायमंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदते। वो खरीदते हैं आज की मोमेंट की खुशी के लिए। उसको उनको साइज़ पसंद है, डिज़ाइन पसंद है, इज़ इट इंस्टाग्रामेबल, यू नो, दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो I don't think that lab grown is the right fit. I think natural diamonds is a better option. But मैं explain करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में डिफरेंस क्या है। लैब ग्रोन है क्या असल में? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो
जो नेचुरल डायमंड है वो नेचर क्रिएट करता है. Okay. It is produced under a lot of heat and pressure. It takes billions of years to form, and it takes the exact precise amount of heat and pressure to produce a diamond. Okay. जो lab grown diamond है, it's created in a lab under very controlled environment and in a very short span of time. So yes, you can say that the chemical composition of natural diamonds and lab-grown diamonds is carbon, and they look very similar, Okay. but the origin is completely different. So lab and natural are two different तो products. लैब में बनेंगे और Yes. नेचुरल जो है वो नेचर में तो बनेंगे. मैं ये क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. तो अब जो लैब ग्रोन अब आप लैब में बना रहे हो, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो मैस प्रोड्यूस होते हैं. पिछले 10 साल में इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई है लैब ग्रोन की कि डिमांड इज एक्चुअली नॉट इवन देयर फॉर एज मच प्रोडक्शन जितना है. तो आप अब ये इमेजिन करो कि और 5 साल में कितना Yes. प्रोडक्शन हो जाएगी, तो प्राइस नेचुरली डाउन जाएगी. और डायमंड्स जो हैं वो we're dependent on nature for its production. अब मैं आपको एक गोलकंडा माइन के बारे में बात करती हूँ जो हमारे इंडिया में है. इट इज़ द फर्स्ट माइन जहाँ से डायमंड्स निकले थे. Okay. और अब वो माइन खाली है. अच्छा. अब कोई हीरे वहाँ से निकलते नहीं है बिकॉज द माइन हैज़ बिन डिप्लीटेड. तो आज की तारीख में जो गोलकंडा डायमंड है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल. तो ऐसी चीज़ नेचुरल डायमंड्स में पॉसिबिलिटी है, बट विथ लैब ग्रोन डायमंड्स द प्रोडक्शन इज अनलिमिटेड. Okay. दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक ऑफ इट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. पर उसको खरीदो क्योंकि सुंदर है, शाइन आती है, प्राइस अफोर्डेबल है, इंजॉय करो उसको. अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली Yes. नेचुरल डायमंड्स आर द वे टू गो. शीतल, ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? आपने एक्चुअली बिल्कुल सही बात बोली है कि गोल्ड बढ़ता है जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, जब दुनिया में वॉलेटिलिटी होती है और लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. तो लोग स्टेबिलिटी प्रेशियस मेटल्स में ढूंढते हैं. अगर हम हिस्टोरिकली देखें गोल्ड की प्राइसेस को तो ये नहीं कह सकते कि गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, बट it's had some very strong rises and flat moments also, but the trajectory is increasing. तो अगर हम पिछले 50 साल में फॉर एग्जांपल देखते हैं तो 70s में आप देख सकते हो कि बहुत शार्प राइज आई थी. फिर 2 डेकेड्स के लिए कोई राइज नहीं था. फिर अर्ली 2000s में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी आई, प्राइजेस दोबारा फिर से बहुत इंक्रीज हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. तो लोग जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में है उनसे ट्रस्ट उतर गया था. So they started to buy gold, right? And like you said, governments were also investing in gold reserve because वहाँ पर trust ज़्यादा था. अब आप ले लीजिए कोविड. अब मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मार्च 2020 में गोल्ड की प्राइस थी $1,300 पर आउंस. Okay. अभी पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट $5,500 पर आउंस पे पहुंच गई थी. तो कहने का मतलब ये है कि that was also a time of uncertainty. और अभी भी दुनिया में uncertainty है. So we're seeing a lot of sharp rises, but correction होती रहती है. जैसे for example पिछले हफ्ते 5,500 तक पहुंच गया था, लेकिन अब इस हफ्ते we saw that it went down to 4,600. अब just under 5,000 पे टिक गया है. Similar with silver prices. What I would say to listeners is not to give in to headlines and hype. मैं पुराने ज़माने में सोचती हूँ कि जब हमारी ग्रैंड मदर्स थे या मदर्स थे, जब पैसा थोड़ा सा इकट्ठा होता था तब वो थोड़ा सा गोल्ड लेके रख लेते थे और उसको मतलब घर पे सेव करते थे, और फिर जब ज़रूरत होती थी उसको सेल करते थे या फिर किसी को रीगिफ्ट करते थे. आई वुड से कि बाय गोल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली as the funds become available. I don't think you should invest all at one time. I think that the trajectory of gold is upwards. तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि is it too late? Yes. तो हाँ, दुख तो होता है कि सिर्फ 5 साल पहले it was a fraction of the price. लेते तो अच्छा होता. But हम 5 साल बाद यही चीज़ सोचेंगे. तो मुझे लगता है कि इतना शायद हमें
ज़्यादा अमाउंट नहीं खरीदने की ज़रूरत, बट स्लोली जब हमारे लिए कन्वीनियंट हो, देखें मार्केट को, प्राइजेस देखें, जैसे कि अब थोड़ा सा कम हुआ था तो मे बी इट वाज अ गुड टाइम टू बाय, क्योंकि दोबारा से धीरे धीरे अब दोबारा फिर जा रहा है। ਐਂਡ ਸ਼ੀਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 골ਡ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। 100%। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा दोबारा फिर से लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। जिनके पास घर में बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ कि हर माइलस्टोन पे एक क्वार्टर आउंस खरीद लो, थोड़ा करके उसको जोड़ना शुरू करो कि जब समय आए then you can really put that to use। ਅੱਛਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ 골ਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ 골ਡ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ठीक नहीं हैगा ਹੁਣ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, पुअर मैन्स गोल्ड इसलिए कहा जाता है कि कंपेयर टू गोल्ड, आई मीन इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। आई मीन जैसे आपने बोला कि अबाउट 100 से ऊपर पर आउंस है सिल्वर, और गोल्ड मतलब 7,000 पे पहुंचा हुआ है। सो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। पर देखिए, मैं सोचती हूँ सिल्वर को उसकी यूटिलिटी के बारे में सोचती हूँ। सिल्वर को इंडस्ट्री में कितना इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके यूसेस बढ़ते ही जाएंगे एज वर हेडेड मोर इनटू टेक्नोलॉजी। ज्वेलरी में ऑफ कोर्स सिल्वर बहुत यूज़ होती है, और जबकि गोल्ड की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि gold plated silver is going to become more and more prevalent because people love jewelry, they want to continue to wear it, they love the look of gold, but it's not possible to invest in so much real gold jewelry. So I think that we're going to see silver prices continue to rise. एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम सिल्वर को गोल्ड के साथ कंपेयर करें, its chart is a little bit more volatile than gold, meaning सिल्वर में स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स आती हैं और स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स भी आते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। 1971 में द प्राइस ऑफ सिल्वर वाज $1.27 per gram। लास्ट वीक इट वाज $135 US per ounce। 130 टाइम्स इंक्रीज। इतना इंक्रीज गोल्ड में भी नहीं आया है। लेकिन एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। 1979 में सिल्वर $6 an ounce था, फिर एक साल में वो $50 an ounce पे पहुंच गया था। 2 साल बाद फिर $6 पे आ गया। तो ये जो शार्प राइजेस एंड ड्रॉप्स हैं, लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 127 से अब 85 तक तो पहुंचा ही है। और इसकी जो एप्लीकेशंस है दुनिया में वो बढ़ती जाएंगी, और अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है दुनिया में सिल्वर का। तो ये भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि खाना ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 골ਡ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 골ਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 골ਡ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 골ਡ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ 골ਡ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਿਗਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। I completely agree with you, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो गोल्ड है, it always represented security, stature, dignity, और जो especially women के लिए sacrifice। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि क्वाइटली उसको accumulate किया जाता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी उसको यूज़ किया जाता था किसी भी चैलेंज में। लेकिन अब क्या है कि मैं ये सोचती हूँ कि
हमें पता भी नहीं है कि कितने वैल्यू की गोल्ड हमारे पास पड़ी हुई है। और परिवार में बच्चे को अगर एजुकेशन परस्यू करना है या किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है या ऐसे एस्पिरेशंस हैं, हम ऑफ्टन वो जो डिज़ायर्स हैं सप्रेस करते हैं क्योंकि हम उस गोल्ड को नहीं बेचना चाहते। मैं ये सोचती हूँ कि एक नोबल कॉज में या एक ज़रूरत के टाइम पे अगर हम गोल्ड को यूज़ नहीं करेंगे देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? आई फील लाइक कि गोल्ड शुड बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी कुछ बहुत ही सेंटिमेंटल पीसेस होते हैं, लेकिन जिसने वो सेंटिमेंटल पीस दिया भी है उस इंसान की खुशी के लिए दिया है ना, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए जब ज़रूरत हो। आई थिंक इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब हम किसी शेम से वो स्टेप उठाते हैं तो हम प्रॉपरली नॉलेजेबल नहीं हो पाते। तो कभी कभी हम ज्वेलर के पास जाएंगे बिना इन्फॉर्मेशन के, और कभी कभी हमें सही वैल्यू भी नहीं मिल पाती क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी में ये चीज़ करते हैं। तो पेशेंस के साथ, एजुकेशन के साथ हमें ये स्टेप उठाना चाहिए और प्राइड के साथ कि ये वेल्थ मैंने एक्यूमुलेट की है और क्या बढ़िया बात है, इतनी कम प्राइस में खरीदी और उसकी वैल्यू अब इतनी बढ़ गई है, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। 100%। ਯੈਸ। ਐਂਡ ਸ਼ੀਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਸ, ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि the only way to combat fear is through knowledge। ठीक है, तो I'll definitely give you some very simple tips कि किस तरह से हम अपने आप को educated रहें इस चीज़ में। सबसे पहले बात है कि जो गोल्ड का वैल्यू है, it is based on two things। एक होता है कैरेट वेट, वो होता है 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। दूसरा होता है जो एक्चुअल फिजिकल वेट है गोल्ड का, 1 आउंस, 2 आउंस, 3 आउंस। जो ज्वेलरी होती है वो रेयरली प्योर गोल्ड होती है। ठीक। प्योर गोल्ड का मतलब है 24 कैरेट। यूजुअली जो ज्वेलरी होती है वो 18 या 20 कैरेट होती है। इसका मतलब जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसको जब हम रिफाइन करते हैं, उसको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। उसमें एक रिफाइनिंग फ़ी लगता है जो ज्वेलर चार्ज करता है। उसके अलावा ज्वेलर का टाइम लगता है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसका लेबर है, उसका एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है। मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब आप अपनी ज्वेलरी निकालें, एक तो देखें कि ज्वेलरी के ऊपर स्टैम्प्स बने हुए हैं। Yes. अक्सर क्लैस्प्स के ऊपर और ज्वेलरी के अंदर स्टैम्प होता है 14 कैरेट, 18 कैरेट, नंबर 1। दूसरी बात, जब आप ज्वेलर के पास जाते हो उनको बोलो कि अलग अलग पायल्स बनाएं अलग अलग कैरेट गोल्ड के। तो जो 14 कैरेट के पीसेस है उसका अलग पायल, 18 कैरेट का अलग, 22 कैरेट का अलग। फिर उनको बोलो कि इंडिविजुअली एक एक पायल को वे करें और फिर कैलकुलेट करें कि क्या वैल्यू है ईच की। तो जैसे वो कर रहे हैं, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, ऑनलाइन जो स्पॉट गोल्ड की प्राइसेस हैं वो चेक करिए और कंपेयर करिए। जहाँ पर गैप हो आप ज्वेलर से पूछिए, और कोई भी अच्छा ज्वेलर है वो चाहेगा कि उसका कस्टमर इन्फॉर्म्ड हो और एजुकेटेड हो, और उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको बताने में कि ये मेरा कमीशन है या ये रिफाइनिंग फ़ी है। जी, जी। तो और आजकल तो आप ऑनलाइन स्केल्स भी खरीद सकते हो, तो अगर आप खुद भी घर पे उस चीज़ को वे करके जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी जब हम खरीदते भी हैं ना, बहुत अच्छी नॉलेज से नहीं खरीदते। हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के साथ ज्वेलर में और हमें लगता है कि हम 22 कैरेट का खरीद रहे हैं और वो निकलता है 14 कैरेट का। कभी कभी हमें लगता है कि ये प्योर गोल्ड है, पर अंदर से वो चांदी होती है, कॉपर होता है। तो हमारे जो घर के किट्स होते हैं वो सिर्फ सरफेस को टेस्ट करते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल मशीन्स ही अंदर से चेक कर सकती हैं उसकी क्या प्योरिटी है। तो थोड़ा सा हमें वो भी माइंड में रखना चाहिए कि जो हमें लगता है वैल्यू, कभी कभी वो निकलती नहीं है। ਸ਼ੀਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਿਕਚਰ ਵਰਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ किस तरह की ज्वेलरी है जी वो अपने बच्चों वास्ते खरीद सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स की इंटेंशन तो हमेशा यही होती है कि हम बच्चे को एक अच्छी चीज़ दें जो वैल्यू होल्ड करे, जो वैल्यू बढ़े फ्यूचर में। लेकिन आई थिंक जो डिस्कनेक्ट है वो ये है कि अब लाइफस्टाइल्स भी बदल गए हैं और जो टेस्ट है वो भी बदल गया है। अगर हम 50 साल पहले देखें तो women weren't working as much, now women are working, हॉस्पिटल्स में बहुत काम कर रहे हैं, राइट? तो मिनिमलिज्म के ज़्यादा फोकस अब मिनिमलिज्म के ऊपर है। तो डालेंगे नहीं, बिल्कुल। तो जो हैवी सेट्स उनको मिलते भी हैं, एक तो बहुत मुश्किल से खरीदे जाते हैं और वो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि सेफ्स में डेकेड्स के लिए पड़े रहते हैं, तो उसका जो जॉय है पहनने का वो फुलफिल नहीं हो पाता। एक तो मैं ये बोलूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा कोलैबोरेटिव होना चाहिए इस डिसीजन में। बच्चों से मशवरा करें कि आप क्या पहनेंगे, क्या पसंद करेंगे, एंड मे बी दे कैन लुक एट इट इन 2 डिफरेंट वेज। वन वे इज़ कि कुछ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीदें, लाइक गोल्ड बैंगल्स एंड गोल्ड बार्स, स्ट्रिक्टली फॉर इन्वेस्टमेंट, और कुछ पीसेस फॉर एवरीडे प्लेजर एंड जॉय। आई थिंक जो जेनजीज के बारे में अगर हम बात करें, दे लाइक सिम्बॉलिक पीसेस, दे लाइक मीनिंगफुल पीसेस, things that they can wear every day, like diamond studs, like a diamond tennis bracelet, a little pendant that maybe has their initials, kind of light, simple pieces, but symbolic. So I would say a little bit of balance of both should be there. Also, एक जो stigma है कि जब jewelry parents से मिलती भी है तो वो पसंद नहीं करते कि उसको हम रीडिज़ाइन करें। एक सेंटिमेंटालिटी होती है कि वो, या एक स्टिग्मा होता है कि उस ज्वेलरी को हम चेंज ना करें। पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम ज्वेलरी पहन ही नहीं रहे हैं तो फिर पेरेंट्स को भी कहाँ अच्छा लगेगा। तो अगर if people could be open to redesigning those pieces into pieces that they will wear, I think that needs to be destigmatized. सो दोनों पासे बैलेंस की जरूरत है। अच्छा, थोड़ी जी शीतल गल करिए डायमंड एजुकेशन जिहड़ी है वो भी लोगों नूं थोड़ी जी मैं देना चाहनी हाँ अज। ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਸਸ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਪੀਸਿਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज की जो डायमंड मार्केट है इज़ वेरी डिफरेंट दैन 10 years ago। 10 years ago सिर्फ नेचुरल डायमंड्स होते थे। जब पता था कि हम डायमंड खरीदे तो नेचुरल ही ऑप्शन था। अब हमारे पास नेचुरल्स भी हैं, मोइजनाइट भी है और लैब ग्रोन डायमंड्स भी हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपका क्या प्राइस रेंज है, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड्स हैं, जैसे आपने बोला 1 कैरेट का डायमंड अगर आप गोल्ड की सेटिंग में एक रिंग बना रहे हैं तो वो मिनिमम आपको 6 से 7 हज़ार की रेंज में ही जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए साइज़ मैटर करता है तो लैब ग्रोन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अगर आपका बजट $2,000 से $3,000 है तो आप आराम से एक 2 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड एक गोल्ड सेटिंग में खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ एंड योर पार्टनर कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। Also, people don't want to spend so much money on engagement rings now. So it's important to understand that. Number 2, it's going to a reputable jeweler जो आपको थोड़ी सी एजुकेशन दे कि ये जो डायमंड है अगर नेचुरल है तो 4 C's होते हैं, कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट, उसके बारे में एजुकेट करे, सर्टिफिकेशन के बारे में एजुकेट करे, क्यों ये कैरेट या क्लैरिटी इतना महंगा है उसके बारे में एजुकेशन दे। कुछ शेप्स होते हैं जो ज़्यादा महंगे होते हैं दूसरे शेप से, ऐसा क्यों है? क्या वो इंटरेस्टेड हैं प्री ओन डायमंड में या वो सिर्फ ब्रांड न्यू डायमंड चाहते हैं? उसमें भी प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आता है। जबकि हम लैब ग्रोन डायमंड में देखते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी सर्टिफाइड होती हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। बट इतनी रिजिडिटी लैब ग्रोन डायमंड्स में नहीं है क्योंकि प्राइस पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। और अब आई थिंक नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम लैब ग्रोन में इनोवेशन भी बहुत देखेंगे।
कलर्स नए नए तरह के, शेप्स नए तरह के, और साइजेस और भी बड़े और यूनिक. तो आई थिंक द मेन थिंग इज फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर. किस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, आपका क्या बजट है, और उस बजट पे अगर आपको लैब ग्रोन बैठता है तो लैब ग्रोन लीजिए, अगर नेचुरल बैठता है तो देन जस्ट बी एजुकेटेड ऑन द 4 C's. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਲੇਡੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ. ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ? अगर हम लैब ग्रोन और नेचुरल की बात करें तो जी हाँ, मैं 20 साल से अब कर रही हूँ तो मुझे पहचान हो जाती है, बट नहीं, एवरेज इंसान को नहीं हो पाती. मोइजनाइट जो है वो उसमें पता लग जाता है, लेकिन अगर हम जो मेजॉरिटी ऑफ परचेसेस हैं नेचुरल लैब में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द केमिकल कॉम्पोजिशन इज द सेम, दिखते बहुत सिमिलर हैं, इसलिए तो लैब ग्रोन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ नहीं दस सकते कि वो सही डायमंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. तो इसके लिए टिप मैं यही बोलूँगी कि हमेशा सर्टिफाइड डायमंड लो. जो सर्टिफाइड डायमंड है उसके डायमंड के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन होती है. अगर GIA सर्टिफाइड है तो एक ट्रेडमार्क इंस्क्रिप्शन होती है जो डायमंड का जो गर्डल है, मिडिल पार्ट ऑफ द डायमंड है, वहाँ पर इंस्क्राइब्ड होता है. हर ज्वेलर के पास एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए. तो जब आप खरीद रहे हो, और इट्स नॉट इवन अबाउट डाउट, इट्स अबाउट एजुकेशन. आप उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ो. एक तो आपका डायमंड है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आपका यूनिक वन ऑफ अ काइंड डायमंड है, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ सकते हो. और कभी भी जैसे कि उस डायमंड को लेकर आप इंडिया चले गए और आपको रीसाइजिंग करनी है, वहाँ पर भी आप सेम चीज़ करिए कि जब छोड़ते हैं डायमंड को तो इंस्क्रिप्शन देखिए, और जब पिकअप करते हो उस इंस्क्रिप्शन को कंफर्म करिए. उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा. दूसरी चीज़ है कि जो नेचुरल डायमंड्स हैं उनमें जो हम बोलते हैं दाग या इंक्लूजन्स होते हैं अक्सर, तो अगर हम उस इंक्लूजन को माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो भी एक जैसे बर्थ मार्क की तरह हो सकता है. वो भी हम उसको वेरिफिकेशन उसको देखकर कर सकते हैं. ਸ਼ੀਤਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਆ ਕੇ? आई थिंक जो आपने ये बात बोली, एक तो डायमंड स्विचिंग का दिमाग में लोगों के बहुत डाउट होता है कि डायमंड स्विच कर दिया. जैसे जो मैंने डायमंड खरीदा वो जब मैं उसको पिकअप करने आती हूँ वो सेम डायमंड नहीं है. तो ये डाउट होता है. अब क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स इतने हैं कि क्या पता मुझे कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल डायमंड है. लेकिन जब हर चीज़ सर्टिफाइड होती है, हर चीज़ हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है. आई थिंक डाउट तब होता है जब हम कस्टमर्स को वो टूल्स नहीं देते एजुकेट होने के लिए. तो क्योंकि अब एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट है विथ सर्टिफिकेशन, वो अब क्वेश्चन नहीं आता एनीमोर. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों की मेंटालिटी बदली है और उसके कारण कीमतें चेंज हुई हैं. सो देखिए, जो मेंटालिटी है अब, एक तो लोगों को लॉन्ग टर्म कम सोचना पसंद है. पीपल आर मोर शॉर्ट टर्म थिंकर्स कि आज मेरे लिए क्या सही है, आज मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है. लोग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहते हैं. ऑल्सो अगर देखा जाए तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जब हम रखते हैं उसके लिए सिरदर्दी भी तो होती है ना. इंश्योरेंस रखना पड़ता है, ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी देखभाल करो. वो सिरदर्दी जेनजीज नहीं पसंद करते. जब पता है कि $2-3 की रिंग है, अगर वो गुम भी हो जाए तो इतना बिग डील नहीं है. तो वो एक मेंटालिटी ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को चेंज किया है. हम इंडिया में भी देखें तो एक रिवाज होता था कि 10-15 सेट्स दिए जाते थे डॉटर इन लॉ को, हर तरह के, पोल्की का सेट, एमरल्ड का, डायमंड का. लेकिन वुमेन आर वर्किंग, और वुमेन को भी यही लगता है कि एक तो हमें कुछ अलग पहनना है हर फंक्शन में. हम सेम सेट तो पहनेंगे नहीं, और कैरी करके जाएंगे तो फिर उसकी सिरदर्दी. तो हम आर्टिफिशियल क्यों ना पहन ले.
लोगों के पास तो ट्रैवल ज्वेलरी अलग होती है और जो रियल ज्वेलरी वो अलग होती है, सो द मेंटालिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤਲ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿੰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨ ਔਰ ਵਿਮਨ? तो डेफिनेटली वुमेन, क्योंकि वुमेन ने पहनना होता है और लड़के होते हैं नर्वस, हमेशा नर्वस होते हैं। उनको तो यही होता है कि जो इसको पसंद है बस वो ले ले। बट मैं ये बोलूँगी कि वुमेन आर constantly on Instagram. They're constantly looking at what other girls have bought. तो उनके माइंडसेट में ये कंपैरिजन तो ज़रूर है जो मैं आज की जनरेशन में देखती हूँ। सो देयर इज़ दैट प्रेशर कि जो मेरी रिंग होनी चाहिए वो कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ यूनिक होनी चाहिए। तो वो प्रेशर थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़रूर क्रिएट करता है और फिर ओवर परफेक्शनिज्म कभी कभी आ जाता है। बट इट्स अ स्पेशल मोमेंट इन देयर लाइव्स। आई एंजॉय द प्रोसेस विद देम। आजकल तो हम कैट डिज़ाइंस बनाते हैं और वो सब बहुत हम डिटेल में चीज़ों को बना सकते हैं। मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ? आई थिंक मेरे लिए ये सबसे मेरा फेवरेट चीज़ है। एक तो वो आए हैं एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए, सो इट्स अ वेरी प्रेशियस मोमेंट। आई थिंक कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर वो इंगेजमेंट रिंग लेने आते हैं तो ऑफ कोर्स वो 4 C's का एजुकेशन होता है। और जो प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो डायमंड चूज़ किया जाता है। आजकल ओवल डायमंड्स और रेडियंट कट डायमंड्स बहुत पॉपुलर हैं। तो लेट्स से कि उन्होंने अब एक 2 कैरेट का ओवल डायमंड सेलेक्ट कर दिया है। फिर हम सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनको येलो गोल्ड चाहिए, वाइट गोल्ड चाहिए, और फिर जब सेटिंग फाइनलाइज होती है हम उसका कैट डिज़ाइन बनाते हैं। वो एक 3D रेंडरिंग होती है। तो वो पिक्चर शेयर करते हैं तो फिर वो एक स्टेप क्लोजर हो जाता है रियलिटी तक, राइट। तो फिर उसके बाद हम उसका वैक्स मोल्ड बनाते हैं, फिर वो कास्टिंग में जाता है, फिर उसको सेटिंग करके उसका फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले तो वो इंगेजमेंट रिंग लेते हैं। फिर कुछ महीने बाद जब शादी की डेट सेट होती है तब उनका वेडिंग बैंड बनता है। फिर लड़का भी आता है अपनी वेडिंग बैंड लेने। तब लड़के को होता है कि मुझे भी थोड़ा सा स्पॉटलाइट चाहिए, मुझे भी थोड़े से हीरे चाहिए अपने रिंग्स में। तो फिर उसके बाद जो ब्राइडल ज्वेलरी है, कभी कभी ब्राइड्स डायमंड स्टड्स और ब्रेसलेट्स और डायमंड नेकलेसेस पसंद करती हैं। फिर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है उन परचेसेस में। काफ़ी स्ट्रेसफुल है ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਰਿੰग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ याद है शीतल? मैं ये याद कर सकती हूँ कि एक दफ़ा कपल के साथ उनके पेरेंट्स आए थे और लड़की तो अपना डायमंड चूज़ कर रही थी, लेकिन फिर मॉम को था कि मुझे भी डायमंड खरीदना है। तो थोड़ा सा जो स्पॉटलाइट ब्राइड से चला गया था वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। लेकिन आई नो डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। आई मीन आई थिंक दैट एक्साइटमेंट इज़ देयर एंड उस प्रोसेस में डॉटर इन लॉ को भी डायमंड मिल गया और मदर इन लॉ को भी मिल गया एंड बोथ वर हैप्पी। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਤਲ, ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ 골ਡ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਇੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ। I always feel planning is better than a last minute purchase. So what that means is कि अगर हमें पता है कि you know our kids are in a relationship, eventually that time will come for marriage, start acquiring things sooner as opposed to later, whether it's buying gold, whether it's finding out about what do diamond rings cost and how much to budget for that. So planning ahead is very important. Also what I would say is हमें hype और जो मीडिया हेडलाइंस हैं उन पे ध्यान कम देना चाहिए एंड वी शुड फोकस कि हमारी ज़रूरत क्या है, यू नो, वर्सेस दिस होर्ड मेंटालिटी कि फटाफट खरीद लो। आई थिंक कि गोल्ड को ग्रेजुअली, गोल्ड या सिल्वर को स्लोली ग्रेजुअली खरीदना चाहिए। आई थिंक कि जब भी हम कुछ जल्दबाजी में करते हैं, आई फाइंड दैट मिस्टेक्स हैपन। टेक योर टाइम, विजिट द ज्वेलर, यूज़ देयर एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज पूरी रिसर्च करके जाओ। ज्वेलर्स बहुत
पेशेंटली समझाएंगे, तुम्हारे अगर क्लैरिफिकेशंस हैं या डाउट्स हैं उनको ओवरकम करवाएगा ज्वेलर। लेकिन अगर आपके पास 2 हफ्ते हैं, आपको सब कुछ 2 हफ्ते के अंदर ही करना है, तो आई फाइंड दैट यू एंड अप ओवर पेइंग एंड मे बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फिनिश प्रोडक्ट। सो don't rush your decisions. Deal with a reputable jeweler. Take your time in purchasing things. Invest time in learning and educating yourself. ਸ਼ੀਤਲ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ 골ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, अगर मैं तो सिर्फ हिस्ट्री देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि गोल्ड में थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आती है, बट दोबारा वो फिर इंक्रीज ही होता है। मैं तो आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द पास्ट 50 years। जो दुनिया में वॉलेटिलिटी है, इट्स ऑन द राइज। इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज ऑन द राइज। आई थिंक दैट आई डू सी एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी फॉर गोल्ड। तो मेरे हिसाब से don't buy such a large amount that if it does correct a little bit further that you have regrets, but buying small amounts in, over a period of time is more wise. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 골ਡ ਬਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, गोल्ड बार्स तो खैर आप ये सोचिए 1 ounce जो एक कॉइन होती है वो $7,000 है। तो बार्स तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं तो ये बोलूँगी कि आप धीरे धीरे कॉइन्स इकट्ठे करिए, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। $7,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर 1 ounce. So I would say buy 1 coin at a time. Anything in closing, Sheetal? I just feel really grateful for this opportunity to talk about a topic that I'm very passionate about. I think that gold and jewelry is a beautiful adornment for women. Safe में नहीं रखना चाहिए. Life is short. Let's enjoy our pieces. Let's live every moment. Let's, have open conversations with our children when we're planning on buying jewelry for them, and buy pieces that they're going to cherish for their lifetime and maybe pass down to future generations. ਸ਼ੀਤਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you so much for having me. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੀਤਲ।